کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ میں یہاں پر ایک ماہ کا قرآن و حدیث کورس کر رہا ہوں۔ خصوصاً آج کے جو مدنی مذاکرے کی ایک بات وہ یہ کہ حج کران اور حج تمتع والے پر جو قربانی ہوتی ہے وہ شکرانے کے طور پر ہوتی ہے، یہ بات سیکھنے کو ملی۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شروع سے شرکت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ایسی باتیں واقعی سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو ہم یقیناً ہمیں کتب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بھی یقیناً ایسی باتیں سیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ مدنی مذاکرہ آپ سن رہے ہیں، آپ بیٹھیں ہیں تو دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، ساتھ میں کوئی اور آپ کی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ فیضان مدینہ مرکز کو محبت میں مدنی مذاکرہ دیکھنے کو ملا، اور الحمدللہ بہت ساری سیکھنے کو باتیں ملی۔ اس میں سے کچھ یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دام ذلہ سے سوال ہوا، ایک جانور ایک بکرا سب گھر والوں کی طرف سے یعنی قربانی کے لیے کفایت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ان کی طرف سے ایک ہی بکرا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جن جن پر واجب ہے ان کی طرف سے قربانی الگ الگ کرنی پڑے گی۔ جس طرح امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں، ہماری امیر علیہ سنت کے تجربات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اور یہ سیکھنے کو ملا کہ قربانی جو ہے نا پہلی امتوں میں بھی راج تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں 10 سال قربانی کی۔ نماز کے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، فرض و علوم سیکھنے کو ملتا ہے۔ زندگی قربانی کا جو بھی سیزن ابھی چل رہا ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اس قربانی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، میں ان سے عرض کروں گا اگر ہو سکے تو، اگر ممکن ہو تو آپ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں اور گھر میں بیٹھے مدنی چینل آن کر کے دیکھیں، تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی کہ جو آپ برسوں سے پہلے آپ نہیں سیکھ پائیں گے۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ سمجھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف نفل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور دل کی نیت کافی بھی اور ضروری بھی ہے، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو آپ مسجد میں افطار وغیرہ نہیں کر سکتے۔ افطار کا ٹائم آ گیا، نیت بھول گئے تھے، اب یاد آ گیا، چلو اب کر لیجئے نیت کر کے بھلے آپ افطار کر لیجئے۔ تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لیں، ذکر و درود کر لیں۔ اب بھی اگر کھانے پینے کے لیے نیت کر رہے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کی صورت یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب بھلے آپ جو بھی کھانا پینا وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1444 ہجری کہ ذوالحج شریف کی آج تیسری شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا اب عیسائی بھائی ماشاءاللہ طلباء کرام کا ماشاءاللہ وہ نورانی امام لہرا رہے ہیں، مرحبا۔
सबको खुशामदीद। अब कल आप नहीं होंगे, दूसरे होंगे शायद। नहीं, बयान हो रहा होता है, इतना प्यारा वाकई ईमान अफरोज बात ने मुबल्लिग बता रहे थे, और सारे खड़े हो गए। कहीं से नारे की कोशिश हुई थी, लेकिन शायद किसी ने उसको रोक दिया। तो ऐसा आइंदा भी ना करें। मैंने पहली रात बड़ी तफसील से मरूजात पेश की थी इस पर, लेकिन ज़ाहिर है मैंने ये भी कहा था कि अब कल दूसरे होंगे, तो उन्होंने अपने हिसाब से चलना होगा। तो आइंदा ख्याल रखें कि जब बयान हो रहा हो, ये जलसों का ट्रेंड है कि लोग खड़े होते हैं, तो जलसों में कोई तरबियत ट्रेनिंग का आमतौर पर निज़ाम तो होता नहीं है, एक ही जलसा होता है, हो गया खलास हो गया। तो वैसे जब कोई आलिम कुरान और हदीस की बात कर रहा हो ना, तो उसको गौर से सुनना, जो सुनने के लिए हाजिर हुए ये उनके लिए लाजिम है, कंपल्सरी है। अब बेमौका नारे नूर की बरसात, अब वो नूर की बरसात की दुआ तो अच्छी है, अल्लाह कबूल करे, लेकिन मसला ये कि ये कुरान और सुन्नत की मसले बयान हो रहे हैं और आप ये नारा लगा रहे हो, तो जो बेचारा समझना चाहता है, आप तो नहीं चाहते समझना, ये तो तय हो गया कि आप नारा लगा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे समझना चाहते हैं वो तो तवज्जो हट जाएगी ना उनकी, भूल भाल जाएंगे, गलत फहमी हो जाएगी, हाँ का ना का हाँ, हलाल का हराम, हराम का हलाल, कुफ्र का ईमान, ईमान का कुफ्र, हो सकता है उसकी समझ में आए, बहुत बड़ी गलत फहमियाँ हो जाती है। इसलिए नारे जो है ना, ये नारा कोई ईमान अफरोज बात आए ना, तो वो बात पूरी हो जाए ना, बात अब लगे ना, तो वो भी ज़रूरत है, तो ठीक है। हमारे यहाँ नारे इतने नहीं लगते, ये इज्तिमा और हम सुन्नतें बता रहे हैं, निज़ाम है कि हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं, वो जोशीला बयान होता है ना, जब ईमान अफरोज बात, उस वक्त आदमी नारा लगाता है तो ज़रा वो जचता है, जमता है, ये ख्याल रखिएगा। भले कोई कैसी शख्सियत आए, जब बयान हो रहा है वो शख्सियत आके बैठ जाएगी। आखिर वो नमाज में भी तो शख्सियत होती है ना, हम कौन से नारे लगाते हैं कि सफ़ में आ रहे हैं तो वो नारे लगाए, तो एक बुजुर्ग वहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, फिर वह नारा लगा, तो एक वहाँ से चले आ रहे हैं, इधर नारा लगा, तो वो नमाज में इस तरह करेंगे तो लोग आपको निकाल देंगे बाहर मस्जिद में। तो बहरहाल एक मौके की मुनासिबत से ये जहाँ भी जब भी आप मौका देखें ना, तो ये नारे नहीं लगाया करें। दूसरा ये कि आगे बढ़ने का भी रुझान होता है, कोई ऐसा शख्स आता है जिसको देखने को जी चाहता है, तो जब वो आता है ना तो लोग उसके लपकते हैं देखने के लिए। ऐसे मौके यहाँ तजर्बा है मुझे रमज़ानों में, और ये होता था एकदम लपकते, फिर क्या वो आ तो गए, अब ना बैठने की जगह ना पलटने की जगह, एकदम बीसम इसको बोलते हैं। अब ये प्रॉब्लम, अब इसमें क्या बाज तो तंग आके चले जाते होंगे, तो नज़र ही कुछ नहीं आता, वो सब घेरे हुए गिलास को। एक नुकसान ये, दूसरा ये कि एक दूसरे पर फिर गिरते थे, पड़ते थे, तो दिल दुखते होंगे, किसी के पाँव दुखते होंगे, किसी का कुछ होता होगा, तकलीफें होती होंगी। तो ऐसा मौका हो ना तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हजर अस्वद चूमना कितनी बड़ी सआदत है, प्यारे आका की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मुबारक खुश नसीब पत्थर है, जन्नत ही है। हाँ, हजर अस्वद जन्नत से तशरीफ लाया है, और ये ऐसा खुश नसीब पत्थर है कि जिस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लब जो हैं वो लगे हैं। अब इससे बढ़कर क्या सादत होगी, लेकिन इस मुबारक पत्थर को चूमना तो ज़ाहिर सादतों की मेराज है। आला हज़रत ने फरमाया कि जब रश हो तो न दूसरों को दाबो न खुद दबो, तो फिर ये ना ईज़ा मुस्लिम की सूरतें हैं ना, ये इसको कोनी मारो, धक्का करके यूं जाके घुस जाना। बाहर शरीफ में भी लिखा है कि वो काबा शरीफ का दरवाज़ा कभी खुलता है, पहले खुलता होगा ना, तो खुले तो इस तरह अंदर नहीं जाना जायज़ नहीं है कि धक्कम पील दूसरों को ईज़ाएँ देते हुए अंदर दाखिल होना जायज़ नहीं है, इस तरह का लिखा हुआ है। तो यहाँ मतलब ये नज़ारे होते हैं, ईसाई भाइयों को बाज़ों को समझ नहीं होती, तो फिर क्या है, एक धक्के मार रहा तो दो बेचारे उसके धक्के सह रहे होते हैं, परेशान होते हैं, पिस रहे होते हैं। ऐसा ना क्या करें, जब भी कभी इन्हें खाली ये फैज़ान मदीना के लिए नहीं बात, जहाँ भी मौका हो ना,
कोई आए जिसको देखने को कितने सारों का जी चाहेगा सब आगे बढ़ेंगे तो धक्कम-पेल तो होगी और तकलीफें लोगों को पहुंचेंगी, फिर बैठ भी नहीं सकेंगे। तो बैठ नहीं सकेंगे तो बाज बेचारे बाज तो ऐसे वो अड़ियल होते कि उधर घुस के बैठना है, किसी की टांग पर बैठ गए, इस पर बैठ गए, बैठना है। लेकिन जो बेचारे शरीफ होते ना वो फिर हालांकि बेचारे पहले से बैठे होते हैं, अगर वो अड़ाउड़ी वाले घुस जाते हैं आगे आगे और फिर वो बेचारा शरीफ आदमी जाके पीछे, उसका दिल कैसा टूटता होगा। इतनी मुश्किल से पहली सब में गरीब ने नमाज पढ़ी, आप अपनी मर्जी से दूर से आए और धक्कम पील करके उसको भगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। हमेशा ख्याल रखना ऐसा कि किसी को हमारी जात से अगर राहत नहीं पहुंचती, सुकून नहीं मिलता तो तकलीफ तो ना दें हम किसी को, बल्कि राहत पहुंचाएं हम दूसरों को। अपने खुद तंगी बर्दाश्त करके दूसरे के लिए जगह कुशादा करें, इसमें मजा है, आखिरत का फायदा है इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो जब भी मैं आऊं मेहरबानी करके खड़े ना हुआ करें, खड़े होने में बदनस्बी का चांस बढ़ जाता है। बैठे बैठे जब सब बैठे रहेंगे और अगर कोई देखना ही चाहता है तो मैं तो ऊपर ऊंचे हूं ना, अब इस वक्त सबको नजर आ रहा हूँ, तो अब खड़े होंगे तो मसले खड़े होंगे, तो ना आप खड़े हो ना मसले खड़े हो, सारे बैठे रहे, बैठा मदीना ना नारे लगाएं, क्योंकि कोई यहाँ मस्जिद है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा होगा, कोई अपना विरद कर रहा होगा, कोई की तिलावत लेके बैठा होगा, तो वो डिस्टर्बेंस। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। यही अंदाज इनके दर्जों में या जहाँ जहाँ क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तलबा कराम इल्म दीन जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, तो ये गोया कि एक दूसरे का ख्याल और एक दूसरे का लिहाज रखना, जूते उतारने की जगह, जूते रखने की जगह, बैठने की जगह, बेंच या टेबल या कुर्सी, जो भी, इन तमाम चीज़ों में फिर अपने जो क्लास फेलोज़ होते हैं, जो तालिब इल्म साथ पढ़ रहे होते हैं, इन सब के लिए फिर हर जगह पर इसका लिहाज और ख्याल रखने में इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिल्कुल, दीनी जगह हो या दुनियावी, दावत में ही कहीं किसी के घर गए जी, तो वहाँ अल्लाह गुल्ला करने की इजाजत थोड़ी है कि वहाँ कोनिया मारो और लाते मारो किसी को। हर जगह मतलब हमारी जात से किसी को ईजा नहीं पहुंचनी चाहिए, ये अपना उसूल बना लिया जाए। ईजा नहीं, तकलीफ नहीं देनी, तकलीफ उठा कर सब्र करके जन्नत का हकदार जरूर बनना है, मगर तकलीफ देनी नहीं है ना। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूल से देना है इंशाअल्लाह, फिर मजा है। बुजुर्गों का यही अंदाज रहा है और इसीलिए तो आज मज़ारों में इनकी मौज लगी हुई है। जो ईजा देने वाले बड़े शान से जिंदगी गुजारते हैं, मरने के बाद कब्रों पे कुत्ते लौट रहे होते हैं और बुजुर्गों को सैकड़ों हजारों साल हो गए, लोग इन पर फूल डाल रहे होते हैं, इसाले स्वाब कर रहे होते हैं ना। ये इमाम हुसैन शहीद करबला है ना, कैसी शान है इनके, दुनिया से जाने के बाद भी कैसी शान है ना। मजलूम शहीद है ना, और जिसने शहीद किया जिन लोगों ने, आज एक की भी कोई ऐसी कब्र बनी हुई है मैंने नहीं सुनी, किसी कब्र बनी और लोग उस पर हाजिरी देते हो, कुत्ते बिल्ले लौट रहे होंगे, कब्रें भी क्या नामो निशान मिट गए, कहाँ गया तख्त, कहाँ गया ताज, कहाँ गया राज, सब खाक में मिल गया। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे याद रखती है करबला। न शिमर का जोर और सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे याद रखती है करबला। अल्लाह का करम है कि हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत नसीब हुई और यजीद से नफरत मिली। ये हमारी सआदत 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 और सआदतों की मेराज है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सहाबा और अहले बैत के मानने वाले हैं अल्लाह की रहमत से। माशाअल्लाह जामियातुल मदीना की ये जो शिरकत की तरकीब है, अल्लाह पाक हमारी मजलिस को, तमाम तलबा कराम असातिज़ा को भी सलामत रखे। माशाअल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया और ये तलबा कराम का सिलसिला अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मद्दी मुज़ाकरों में जारी रहेगा इंशाअल्लाह। कराची के बाहर भी माशाअल्लाह देखा गया है कि तलबा कराम जामियातुल मदीना के शिरकत करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बाहर वाले भी बेचारे तड़पते कहो, तरसते कहो कराची आने के लिए, बेचारे आए कैसे यार, नहीं मतलब सही कह रहे हैं, अखराजात और तालीमी छुट्टियां वगैरह बहुत मसला है ना बेचारे, लेकिन
तरसते कभी कभी पैगामात आते हैं किसी जामियातुल मदीना से, आपको बुला लो। माशाल्लाह, ये भी हाजी अजहर भाई के साथ माशाअल्लाह तलवारा। माशाअल्लाह, जामियातुल मदीना तलवाड़ा सियालकोट। खुश हो। अभी ईसानी देनी की बात हो गई, हम तलवाड़ा पहुंचे। ये तलवाड़ा जो है ना, ये हिफाजत की है, जुल्म की नहीं है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कमोबेश 10 जामियातुल मदीना के तलबा कराम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना, जामियातुल मदीना अल नूर सोसाइटी, जामियातुल मदीना सखी हसन, जामियातुल मदीना औरंगी टाउन इकबाल मार्केट, जामियातुल मदीना बिलाल मस्जिद औरंगी टाउन, जामियातुल मदीना औलिया मस्जिद औरंगी टाउन, जामियातुल मदीना सुबहानी मस्जिद औरंगी टाउन, जामियातुल मदीना अल्ताफ़ नगर औरंगी टाउन, जामियातुल मदीना साइमा अरबियन विलाज सुरजानी, जामियातुल मदीना सुरजानी टाउन। माशाअल्लाह, वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नू भली करी आया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ बग़ैर रागल है। मरहबा। इंशाअल्लाह यहाँ पर कुछ इस्लामी भाई मौजूद है जो आपसे सवाल करेंगे और आपके हिकमतों भरे जवाब लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद जमील अतारी है, मैं हैदराबाद से हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। आपकी बारगाह में मेरा इस सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई अपनी पहली कुर्बानी कर रहा है जो उस पर वाजिब है, लेकिन अगर वो चाहे कि पहले आका के नाम की कुर्बानी करे तो क्या वो ऐसा कर सकता है? अल्लाह अल्लाह, अगर अपनी कुर्बानी का वाजिब अदा होने की भी सूरत मौजूद है तो 2 बकरे ले ले, अच्छे वाला जो है वाक़ा की बारगाह में नजर कर दे, और अब बाकी जो है दूसरा वो अपने लिए कुर्बानी कर ले। 2 नहीं ले सकता, एक ही लेने की इस्तिताअत है, ताकत है। तो अब ये कि इसका और तरीका है, कुर्बानी अपने जो वाजिब है उस नीयत से कर ले और इसाले सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यानी 2 जानवर हैं और दोनों में एक इसके अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब है और एक जो इसने इन्होंने जो लिया, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये हाजिर किया जाएगा, इसका सवाब और आका के नाम पर कुर्बान करना है। तो इसमें तरतीब क्या हो, जैसे कि पहले जिसका वाजिब था वो पहले अपना वाजिब अदा करके पहले वो जानवर ज़बह करे, या पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो उसने रखा कि मैं आका के नाम पर आका की बारगाह में सवाब के तौर पर हाजिर है तो उसको पहले काटे, क्या करना चाहिए? अब ये तो एक मशवरा ही कह सकते हैं इसको। जी मशवरा। तो यूं देखा जाए तो एक नेक काम है ना ज़बह करना, कुर्बानी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहले नजर कर दे, फिर अपनी करे कि इस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़बह हुई है शान में कुर्बानी, तो उसके सदके मेरी भी कबूल हो जाए। ये सिर्फ मशवरा है, लेकिन वो इसका अगर उलट भी किया है ना तब भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे पहले ज़बान हम्द से पाक हो ले, ये भी है ना, पहले अल्लाह पाक की हम्द करे तो फिर सरकार का नाम ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पहले अपनी कुर्बानी कर ले, पहले मक्के शरीफ की हाजिरी, मदीने शरीफ की हाजिरी, तो खैर वो तो हमारी अपनी वो है। कोई शरन ऐसा कोई है कि बुजुर्गों से भी है कि पहले हज करते फिर मदीने जाते? इसका तो भारे शरीयत वगैरह सब में है कि अगर रास्ते में मदीना मुनव्वरा पहले आता है तो फिर हाजिरी दिए बगैर जाना महरूमी है।
ورنہ یہ کہ حج پہلے کر لے پھر اس کے بعد مدینہ شریف جائے جب پہلی دفعہ ہو، پھر باقی اختیار دیا گیا اس میں. ماشاء اللہ. اب اس میں تو اب تو آسانی ہو گئی نا، اب تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ڈائریکٹ مدینہ سفر کرتے ہیں نا لوگ. پھر حج کے لیے وہاں سے احرام باندھ کر مدینے سے اختیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پہلے زبان سے پاک بولے، کہ پہلے زبان سے پاک بولے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. عزا کیا جا دے کو ایمان والو، عزا کیا جا دے کو ایمان والو. بس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ، بس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. کہ پہلے زبان سے پاک بولے، کہ پہلے زبان سے پاک بولے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اللہ پاک کا ذکر ہے، پھر نام ہے مصطفیٰ کا. اذان میں پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخر میں اس کے بعد آتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بھی بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. کہ پہلے زبان حمد سے اللہ پاک کی خوبی بیان کرنے سے پاک کر لی جائے، اب سرکار کا نام لیا جائے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آپ سے سوال کیا، حیدرآباد سے یہ حاضر ہوئے ہیں. یہ حیدرآباد والے بزرگ جو ہیں بہت دیر سے کھڑے ہیں، بیچارے تھک نہیں گئے ہوں گے یار. یہ آپ کے حضور کھڑے میں وہ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ عمر ان کی مجھے یوں ہمدردی اور کہ میں بھی اتنی دیر کھڑا رہوں تو شاید تھک جاؤں. یہ آپ سے سوال کرنے کے بعد یہ آنکھوں سے کرسی پر بٹھا دیں. جی بٹھا دیا. ہاں ماشاء اللہ. اچھا آپ بھی آپ سے سوال کرنے کے بعد ان کی اشک باری جاری تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں یہ سعادت ملی آج مجھے امیر اہل سنت سے ڈائریکٹ بات کرنے کی، تو میں اس کے شکرانے میں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا فرمائیے آسانیاں ہو جائیں، آمین رکاوٹیں دور ہو جائیں، آمین. اللہ پاک اسباب کر دے. ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے، آمین حاضری مدینہ کی سعادت مل جائے. آمین. ماشاء اللہ. بارک اللہ. یہ یہاں پر جو سوالات کرنے والے عاشقان رسول ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح آپ کو تحفے پیش کرتے رہیں تو آپ کے قلب کو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ماشاء اللہ نے جو سوال کرنے آئے نا وہ خالی ہاتھ نہ آئے، کچھ نہ کچھ میری جھولے میں ڈالتا جائے. اللہ نیکیوں کی خیرات. یعنی سننے والے ناظرین یہ نوٹ مانگ رہا ہے، نوٹ نہیں مانگ رہا، نیکیاں مانگ رہا. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی جانور اس کا نام کسی ولی اللہ کے نام پر یعنی غوث پاک وغیرہ کے نام پر رکھ دیا جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں. جواب انشاء فرما دیجئے. یہ تو جس نے کہا وہ غلط کہا، ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب اپنی چیزوں کے نام رکھنا سنت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے تھے.
ठीक है ना। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो चीज़ें हाजिर होती वो थी गिनती की, अब हम लोगों को तो ढेर लगे हुए यार, इतनी सारी चीज़ें, तो किसका नाम रखे हुए, नाम रख के याद रखना भी एक प्रॉब्लम, हम याद भी नहीं रख पाते हम, इसलिए वो ख़ास चीज़ों का जैसे नाम फिर भी जितना हो सके कोशिश करके आदमी रख ले, फिर उसको लिख भी ले कि उस चीज़ पर हर चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें लिखा जा सके। चादर पर ना लिखा जाए, चादर फिर पाँव में भी बिछा देते हैं हम, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो कोई निशान लगा ले उस पर, और या डायरी में नोट कर ले या मोबाइल में कहीं सेव कर ले, तो इस तरह उसका नाम याद रखने की तरकीब की जा सकती है। तो गौस पाक के नाम पर कोई जानवर वो यूं होता है, असल शायद गलत फहमी वो जो कि किसी ने गौस कुर्बानी से इसका ताल्लुक हो सकता है ना हो। 11वीं शरीफ के लिए बाज लोग पालते हैं गौस पाक को ईसाल सवाब के लिए, तो फिर उसको बोलते हैं गौस पाक का बकरा है, तो बकरा पाला कि हम इसके गौस पाक के ईसाल सवाब के लिए न्याज करेंगे, मतलब यही होता है कि गौस पाक के ईसाल सवाब के लिए न्याज कर रहा है। इसको गलत फहमी है बाद लोगों को, तो इसको ये बोल देते हैं कि ये नाजायज़ है, गुनाह है, फुला है, ये बोलते हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है कि अब गौस पाक का बकरा, तो ये एक मुझे चुटकुला याद आया, सच्चा वाक़या, मुझे एक दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी, एक दोस्त ने बताया था कि हम लोगों ने कोई नियाज के लिए वो जानवर लिया था 11वीं शरीफ का, तो वो मैं लेके जा रहा था, तो फुला मिले, हमारी बिरादरी के थे और हमारे गांव के भी थे, तो एक मिला आदमी जो बेचारा मतलब था, बेचारा ही था, बेचारा भी था या कुछ और ही था, खैर तो उसने बोला ये किसका है, तो बोला कि गौस पाक का, तो हराम हो गया, शिरक हो गया, ये हो गया, खैर वो बात आ ही गई हो गई। इत्तेफाक से उस मेरे दोस्त ने जो बताया कि वही आदमी बकरीद के दिनों में वो अपना जानवर लिए आ रहा था, तो उसका कोई होगी ना तरकीब, तो उसने पूछा कि अरे किसकी है, तो क्यों मेरी है, छोड़ शिरक हराम, क्यों, और जब मैंने कहा था गौस पाक की है तो तुमने हराम शिरक कहा था, तो अब गौस पाक की हो तो हराम और तुम्हारी हो तो हलाल, ये कौन सी शरीयत है, वो क्या जवाब दे उसका। तो ये गलत फहमियाँ, वाकई गलत फहमियाँ ना, मुराद ये होता है कि अच्छा मस्जिद क्या होती है, अल्लाह का घर होती है ना मस्जिद, अच्छा आप हमने ये नाम रखा फैज़ान मदीना, लेकिन एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद नबवी, जिसकी ज़ियारत के लिए आशिकान रसूल तो तड़पते हैं, जो आशिकान रसूल तड़पते हैं ना, काश ज़ियारत हो जाए, तो अल्लाह के नाम की तो नहीं है, मस्जिद नबवी है, नबी के नाम की है, उसमें नमाज पढ़ना कैसा, तो अंदर छुड़ के मस्जिदें सारी अल्लाह की, बल्कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में सब अल्लाह के लिए है। अब मजाजी तौर पर दूसरे को दूसरा मालिक हो जाता है, मकान मालिक, दुकान मालिक होते हैं ना, ऑनर, तो मतलब ये कि हकीकत में तो हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ने अता किया है। तो यूँ मस्जिदों के नाम भी हम अल्लाह के नाम पर नहीं रखते, तो यूँ गौस पाक का बकरा या ख्वाजा साहब का बकरा या इस तरह का अगर रखा है नाम, तो इससे मुराद यही होती कि ये इनको ज़बा करके इनको पका पकोगे गौस पाक के ईसाल सवाब की न्याज, ईसाल सवाब के लिए खाना पकेगा, न्याज होगी, गौस पाक की न्याज भी बोलते हैं, 12वीं शरीफ की न्याज। तो ये निस्बतें हैं, हकीकत में कोई या गौस करके निवाला नहीं उठाता, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हैं, या गौस कहकर कोई ज़बा नहीं करेगा उस बकरे को, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ही ज़बा करेंगे। तो ये मतलब गलत फहमी दूर होनी चाहिए, ईसाल सवाब जायज़ है, कई हदीसें इसके लिए मतलब हैं, और जो मना करेगा ना ईसाल सवाब को वो भी मानता होता है असल, फिर भी मना करता, तो वो गलत फहमी है। अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए, दावत इस्लामी को छोड़ के मत जाना, दावत इस्लामी में रहोगे तो इंशाल्लाह अक्ल आपके पास रहेगी, इधर उधर हो गए तो फिर कोई मुश्किल है कि अक्ल कहाँ जाए, अक्ल को संभालना है, और अक्ल चाहिए हमें इश्क वाली, मोहब्बत रसूल वाली,
ایسی ہو کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. ہماری عقلیں بھی جان تو جان، ہماری عقلیں بھی مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ کسی نے 2 بکرے لیے قربانی کے لیے، اس پر قربانی واجب بھی ہے اور وہ اپنی طرف سے قربانی دینا چاہ رہا ہے، اس میں سے ایک فوت ہو گیا بکرا، اب وہ کیا کرے گا؟ کیا اور بکرا لے کر وہ ذبح کرے گا یا جو ایک ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ قربانی اصل ایک ہی بکرا واجب ہوتا ہے. اب دوسرا 2 بکرے کیے بھی تو ایک نفل ہو جائے گا، ایک سے واجب ادا ہوگا. اگر شریک فقیر نے لیے تو پھر ایک الگ بات ہوگی کہ واجب ہو جائے گا، لیکن دونوں کی واجب ہو جائے گی. جی، لیکن مرنے سے پھر اس پر بھی دوسرا لینا لازم نہیں ہے. یعنی اگر کوئی فقیر ہے، یعنی شرعن جو فقیر ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، نہیں اتنی رقم اس کے پاس نہیں ہے جو شرائط کے ساتھ اس پر قربانی واجب ہو، تو اب یہ فقیر کہلائے گا. تو یہ جو شرعی طور پر جو فقیر ہے، تو یہ اگر قربانی کے لیے 2 جانور لے لے گا تو اب دونوں کی اس پر قربانی واجب ہوئی. اب اگر ایک فوت ہو گیا یا دونوں ہی فوت ہو گئے تو اس پر یہ لازم نہیں کہ مزید جانور خریدے اور قربانی کرے، بس اس کا جو بھی تھا وہ چلے گیا جانور، قربانی تو واجب تو تھی نہیں، ورنہ تو انہی کی قربانی اس پر واجب تھی. یہ مر گئے، چوری ہو گئے، کسی طرح بھی وہ ضائع ہو گئے، تو اب یہ مجبور ہے. تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو اب وہ اس پر وہ نہیں ہے کہ دوبارہ خریدے. اور مالدار جو ہے غنی، جس پر قربانی واجب ہو تو وہ غنی، اس نے اگر 2 لیے اور ایک فوت ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ایک باقی ہے تو قربانی تو ایک ہی بکرے کی کرنی ہے، 2 کی تو واجب ویسے بھی نہیں ہے اس پر. 2 کرتا بھی تو ایک سے واجب ادا ہوتا، ایک نفل قربانی ہو جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کو مرید ہونا ہو وہ دل میں الفاظ کہہ دے تو کیا اس سے مرید ہو جائے گا یا زبان سے اسے الفاظ دہرانا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں کوئی یاد نہیں پڑتا کہ پڑھا ہو کچھ. اصل یہ بیعت جو نا، یہ جس طرح شادی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، کہ جو بھی ایک کہے کہ یعنی مرد و عورت 2 مسلمان گواہوں، 2 مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان 2 عورتیں مسلمان، ان کی موجودگی میں اگر جیسے مرد کہہ دے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، عورت کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، یا عورت کہہ دے کہ میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، وہ کہہ دیں مجھے قبول، میں نے قبول کیا، تو جس نے پہلے کہا اس کو کہتے ہیں ایجاب، دوسرے نے جو کیا وہ ہے قبول. تو یہ نکاح جیسے ہو گیا. اچھا، اب وہ خطبہ تو یہ خطبہ سنت ہے، دینا چاہیے، اور بھی لوگوں کو جمع کرنا یہ بھی مستحبات ہیں، اور اعلان کرنا نکاح کا، یہ سب اس کے سنتیں مستحبات، اس طرح مطلب کیا بھی اسی طرح ہی جاتا ہے. لیکن ایک شرعی مسئلہ میں نے عرض کیا. اچھا، اب اسی طرح پیری مریدی بھی اسی طرح ہے کہ اگر مرید کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں تو پیر کہہ دے گا میں نے قبول کیا، تب بھی ہو گیا. پیر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو مرید کیا، وہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، قبول، تو یہ ہو گیا مرید. اب ادھر تو زبان سے کہنا ہے کہ وہ گواہ سن لیں، یعنی کسی طرح بھی یہ کہ گواہ سنے نا، اس کی موجودگی میں نکاح ہونا ہے. لیکن پیری مریدے میں گواہ شرط نہیں ہے. ایک فرق تو یہاں یہ ہوا. لیکن اب یہ زبان سے کہنا، اصل تو جو بیعت ہے وہ ارادت کا نام ہے، ارادت عقیدت، دل سے عقیدت کا نام ہے. لیکن جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ زبان سے کہا جاتا ہے.
جیسے بعض منامی صورتیں ہیں خواب وغیرہ کی تو وہ اکابر کے لیے اس کی اجازت دی گئی لیکن دیگر کے لیے نہیں ہے. اسی طرح جو پیر زندہ ہے اسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے. تو جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے وہ یا تو خط وغیرہ کے ذریعے اس طرح جو لکھت کے بول کے قائم مقام ہے بولنے کے اس کے ذریعے ہوتا ہے. تو اس سے یہ بظاہر سمجھ آتا ہے کہ منہ سے کہنا یہ ضروری ہوگا اگرچہ کہ دل سے جو ہے وہ ارادت اور عقیدت اس کی قائم ہو جائے. تو وہ نابالغ بچہ جو ہے نا اس کو بھی اگر سرپرست ہے وہ کہہ دے کہ میرے بچے کو مرید کر لو، پیر نے قبول کر لیا تو اب وہ مرید تو ہو گیا، بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہے، نہ کہے گا نہ. تو نکاح میں بھی ایسا ہے کہ سرپرست نابالغ کا نکاح بھی کر سکتا ہے اور وہ نابالغ ایجاب و قبول نہیں کر رہا، اس کی جگہ یہ کر رہا ہے. تو اب یہ کہ پیری مریدی میں نمائندے کے ذریعے ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے کہا کہ ان کو آپ مرید کر لیں تو پیر صاحب نے ہاں کہہ دیا. اب وہ اس نے قبول نہ قبول کی نوبت نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ اس نے اس کو کہا تھا. اب کسی نے لکھ کر بھیج دیا کہ مجھے مرید کر لو، مرید کر لیا گیا. اب وہ اس نے بھی زبان سے کچھ نہیں کہا. یہاں حالانکہ نکاح اس طرح نہیں ہوتا ہے نا کہ لکھ کر بھیج دے کہ نکاح کر لو، یا ہوتا ہے صورتیں ہیں اس کی. کام یہ کہ صحیح بات دیکھیں میں نے اس کے تعلق سے کوئی پڑھا نہیں ہے، جو میں نے سمجھا جیسے کہ چھوٹا بچہ، بعض وہ چھوٹے بچے مرید ہوتے ہیں، باپ سیٹ نہیں ہوتا کہ وہ مرید ہونے دے، منع کرتا ہے. اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ تو بچے جب ہوتے ہیں یا کوئی ماں بولتی ہے میرے بچے کو، تو میں تو اکثر بیعت کر لیتا ہوں کہ اس میں ایک صورت بچت کی ہے، بلکہ دو صورتیں. ایک تو صورت ہے کہ نابالغ بچے کو اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر پیر نے بیعت کر لی تو یک طرفہ بیعت ہوئی. اب اگر سرپرست اس بیعت کو باقی رکھتا ہے کیا مطلب صحیح ہے، مرید ہو گئے. تو اب یہ کہ بیعت نافذ ہو گئی، یعنی کہ مرید بن گیا. ایک صورت یہ ہے. اب باپ تو مانتا ہی نہیں ہے اس چیز کو، بعض باپ ہوتے ہیں ان چیزوں کو نہیں مانتے یا ذہن نہیں ہوتا. تو اس طرح وہ بچہ ون سائڈ تو پیر نے مرید کر لیا ہے. اب بچہ جب بالغ ہوگا، یہ دوسری صورت بتا رہا ہوں، بالغ ہوگا اور اس بیعت کو باقی رکھے گا، مثلا کہے گا کہ میں فلاں کا مرید ہوں. اب وہ فلاں بھلے فوت ہو گیا ہو، لیکن وہ بچہ جب کہے گا نا فلاں کا مرید ہوں تو اب اس کی بیعت جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی. کیونکہ پیر تو قبول کر کے بھلے دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کی بیعت سمجھو کہ لٹکی ہوئی تھی، معلق تھی، جو سرپرست کی قبولیت کی صورت میں نافذ تھی اور سرپرست نے نہیں کیا مگر بچہ بالغ ہوا، اس نے اس کو باقی رکھا بیعت کو، تو اب یہ نافذ ہوئی. تو نابالغ بچے کو مرید کرنے میں نقصان کا پہلو بازار نہیں ہے، پروفٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صورت بن جائے اس کی بچت کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان. بیٹا کیا نام رکھنا دونوں کا؟ ایک کا نام ستاری، ایک کا نام رانی. یہ ستارہ وہ رانی. میں نے اس کو پیار کر لیا تو وہ نہیں پیار کی دے دے. حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے دار الفرح، اور دار الفرح یعنی خوشی کا گھر، یہ اس کو ملے گا جو بچوں کو خوش کرے. یہ نام رکھنا جانور کا یا اشیاء کا، کیا اس میں بھی کوئی نیت کی جا سکتی ہے؟ سنت جس کے اتنے سارے جانور ہیں، کیٹل فارم ہیں، سب کے نام رکھنا یہ کیا کہلائے گا؟ سب کو سنبھالا جا سکتا ہے، سب کو چارہ دیا جا سکتا ہے، سب کی عمریں بھی پتہ ہوتی ہے، سب نوٹس ہے کون کتنا دودھ دیتی ہے یہ بھی پتہ ہوتا ہے. خالی نام میں جتنا مسئلہ نام رکھنا چاہیے. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان.
कुर्बानी के जानवर नहीं बेच सकते। मैंने सवाल ही करा था। चलो भी नाम भी तो रखवा दो जल्दी से। इसका नाम मीठा, इसका नाम नहीं, बकरी तो नहीं है, दोनों बकरे मीठा, और इसका नाम प्यारा। प्यारा ये है, मीठा वो है, क्योंकि ये देखने भी अच्छा लग रहा है। तो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, ये मीठा पूरा शेर दिया। यहाँ प्यारा काबा, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज गुम्बद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। तो एक बकरे का नाम है मीठा, हाजी के बकरे का नाम, और मिठू ने जो बकरा पकड़ा है उसका नाम है प्यारा। मुझे लगता है दोनों भाई हैं। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي سلم علي يا ربي صل علي. कुछ सवालात हैं जो शॉर्ट पैकेजेस के साथ हम जारी करना चाहते हैं। उधर ये इरशाद फरमाइए, ईद के रोज़ मुर्गी काटना कैसा? ईद के रोज मुर्गी काटना हलाल है, अलबत्ता किसी ने कुर्बानी की नीयत से मुर्गी काटी तो ये कुर्बानी तो नहीं होगी उसकी, मगर उसका ये फेल जो है ना, ये करना, ये भी मकरूह तहरीमी यानी नाजायज और गुनाह है। गोश्त हलाल है मुर्गी का। बीमार जानवर की कुर्बानी करना कैसा? ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, जाहिर की तारीफ भी लिखी है, वो चरता ना, वो मजनून के लिए, इसका भी है। हाँ, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, यानी बीमारी की वजह से चारा ना खाए, क्यों बाजू का जानवर अड़ी करता है चारा नहीं खाता, वो नहीं, बीमारी की वजह से ना खाए चारा। ऐसा बीमार, बीमारी जाहिर हो तो ये इसकी एक अलामत बयान हुई। जाहिर हो तो इस तरह की, यानी कि चरता ना हो बीमारी की वजह से, तो ऐसा बीमार हो तो उसे कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, कुर्बानी नहीं होगी उसकी, यानी ये बड़ा ऐब है इसमें। अंधे जानवर की कुर्बानी करने का क्या हुक्म है? नहीं होगी। भेंगे जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म होगा? अच्छा, हो जाएगी। अब भेंगा सब समझ जाएंगे, नहीं भींगा है भेंगा है, मुझे भी थोड़ा तरद्दुद है तलफ्फुज़ इसका, यानी कि जिसको एक के दो नजर आते हो, है ना, वो तो अब है ना, जिस भेंगा या भींगा, वो अब लुगत ही देखनी पड़ेगी। तो भेंगे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। भेंगा वो जानवर होता है, इंसान भी बाज़ वक़्त भेंगा होता है कि उसको एक के दो नजर आते हैं। लंगरे जानवर, जी हाँ, ये भेंगा सही है लफ्ज़, तलफ्फुज़ लुगत के एतबार से। लंगरे जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म? जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, यानी ऐसा लंगड़ा कि जो अपने पैरों पे चलकर कुर्बान गाह तक ना जा सके, उसकी कुर्बानी नहीं होती। और अगर ऐसा है कि वो कुर्बान गाह तक चल के जा सकता है, जैसे बाद में पाँव में कोई चोट वोट आ जाती है तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता भी चल लेता है और कुर्बान गाह तक ये चला जाएगा, तो इसकी कुर्बानी हो जाएगी। अलबत्ता बात जानवर अड़ी की वजह से नहीं चलते हैं तो उसकी हो जाएगी। बाद वक़्त खींच कर ले जाते हैं कुर्बान गाह तक जहाँ इनको ज़बह होना है, और जो जानवर है वो थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा कर उछल उछल के चल रहा होता है, उसको थोड़ा खींचते तो चलता है, थोड़ा खींचते चलता है पाँव की चोट की वजह से। तो अगर ऐसा जानवर जिसके पाँव में इस तरह की चोट हो तो क्या वह लंगड़ा कहलाएगा? क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि ये गाड़ी से उतारते वक्त जानवर को बाज़ औक़ात पाँव में इस तरह की चोट लग जाती है, खुर में या इस तरह, तो अब वो प्रॉपर खड़ा नहीं हो सकता। लंगड़ा भी इस तरह का नहीं होता कि खड़ा भी ना हो सके, लेकिन चलना उसके लिए दुश्वार होता है। तो अब ऐसे को बाद औक़ात जैसे कि जिसका भी जानवर हो या जो गोश्त काटने वाला हो वो उसको खींचता है, तब खींचता है तो वो जो मतलब हाँ मतलब कि थोड़ा सा जम मारेगा, लंगड़ा लंगड़ा कर यूँ चलेगा, एक पाँव यूँ करेगा, ये इस तरह देखे गए हैं जानवर। तो क्या ये जो जानवर जिसका मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या ये इस लंगड़े जानवर के हुक्म में होगा जिसकी कुर्बानी नहीं होगी?
एक तो है ना कि वो उछल उछल के भी चल रहा है, हाँ उसको खींचते तो चल लेता है, चल लेता है, पर एक होता है कि उसको चल ही नहीं सकता, उसको घसीट के, यहाँ दोनों में कुछ फर्क। कुर्बान गाह तक जाने वाली बात जो ना वो अपने पाँव से ना जा सके, जी जी, तो अब वही किसी घसीट कर और उछल के उसको जाना पड़ रहा है, उसको खींच रहे तो जंप लगाता है या घसीटता है, तो ये इसके अपने पाँव के ज़रिए वो नहीं जा रहा। तो जो लिखा है कि कुर्बान गाह तक जा सके, तो वहाँ यही साथ सराहत है कि अपने पाँव के ज़रिए जा सके वो। लिखा यही है जी कि अपने पाँव से चलकर कुर्बान गाह तक पहुंच सके। तो हम ये घसीटने वाला सब एडिट कर दो ना, जो लिखा हुआ उसको हम बाकी रखते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट भी रहेगा। अगर छोटा या बड़ा जो भी जानवर है उसका एक थन खुश्क हो गया तो कुर्बानी हो जाएगी? अगर बकरी का एक थन खुश्क है तो कुर्बानी नहीं होगी, और बड़े जानवर के 2 थन खुश्क है तो कुर्बानी नहीं होगी, एक खुश्क है तो हो जाएगी। ठीक। ऊंट की कुर्बानी में 10 लोग हिस्सा डाल सकते हैं? किसी की भी नहीं होगी। 7। 5 टांगों वाले जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? असल 5वीं टांग जो है ना वो बाज़ मुर्दार होती है, लटक रही होती है जी, है ना, तो अगर तो उसके लिए तकलीफ का कोई सबब नहीं है, यानी 4 टांगे बिल्कुल ठीक हैं, जैसे चल सकता है उससे, अब ये ज़ायद है तो होना नहीं चाहिए इसे, अगर वो ऐब के तौर पे मालूम होती है, लेकिन ये कि कुर्बानी उसकी हो जाएगी। क्या फरमाते हैं? कुर्बानी हो जाएगी उसकी, लेकिन ये कि अगर ऐब लगता है वो, तो फिर इसको नहीं होना चाहिए इस तरह का जानवर, लेकिन कुर्बानी उसकी हो जाएगी, जबकि चलने पर वो कादिर है 4 टांगों से। उर्फन 5वीं टांग हो ना तो लोग ताज्जुब जरूर करते हैं, ऐब नहीं समझ रहे हम 5 टांग वाला जानवर है ना, तो इस हिसाब से मतलब अगर ऐब भी है तो ये छोटा ऐब है, बड़ा ऐब इसको नहीं कहेंगे। तो कुर्बानी बहरहाल 5 टांग वाले की हो जाएगी। भैंसे की कुर्बानी करना कैसा? भैंसे ही कुर्बानी जायज है। हमला जानवर की कुर्बानी हो जाएगी जो पेट से हो जाएगी। कुर्बानी का अच्छा, इसमें यह है कि बच्चा अगर जिंदा निकला तो फिर उसको भी ज़बा कर देंगे, इसका भी गोश्त कुर्बानी का ही गोश्त है, और अगर मरा हुआ निकला तो उसको फेंक देंगे। अलबत्ता बच्चे वाले जानवर को ज़बा करना ये मकरूह है, चाहे मतलब बकरी दो या इसके अलावा हो, लेकिन ज़बा मकरूह है उसका, कुर्बानी से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये ऐब नहीं है बच्चा होना। अच्छा, अब इससे बाद ये एक सवाल, ऐसा बात सवाल हुआ है जो शायद इसमें ना आए, लेकिन मैं कर लेता हूँ कि अब जैसे आपने कहा कि मकरूह है कि अगर वो बच्चा वाला जानवर है, लेकिन जिसका ये अब जैसे जानवर ज़बा हुआ उसके बाद पता चला कि इसमें तो बच्चा था, तो क्या ये जिसने जानवर ज़बा किया या करवाया अब पता चला ये बच्चा था, तो इसकी मालूमात में तो था नहीं, तो क्या अब भी इसका ये जानवर ज़बा होना मकरूह कहलाएगा? असल मसला वो ज़बहा मकरूह है, कुर्बानी पर तो असर है नहीं, और दूसरा कि मकरूह तंज़ीह है ना, नापसंदीदा है। ठीक, और इस पर यानी जिसको पता है, और अब गरीब जो है फ़कीर उसने कुर्बानी के लिए बकरी ली, अब वो पेट हो गया उसका, तो उसके लिए तो ज़रूरी है, वाजिब है कि उसी जानवर को ज़बा करे, चाहे बच्चे वाली है, पेट में बच्चा है। हाँ, गनी को पता चल गया, उसके लिए बेहतर ये है कि ये बदल दे, ना भी बदले तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तो अब उसके भी फिर वही होगा कि कीमत ज़्यादा। और दूसरा ही कि 10-15 दिन का जिक्र किया कि अगर 10-15 दिन का उसका ये हमल है तो इसमें फिर सिरे से कोई मुज़ायका है ही नहीं, फिर मकरूह भी नहीं है। बिल्कुल जी, 10-15 दिन का हमल हो तो फरमा रहे हैं मकरूह भी नहीं है। ठीक है, ये इरशाद फरमाइए, कुर्बानी का जानवर मर जाए तो अब कुर्बानी का क्या हुक्म है? कुर्बानी का जानवर मर जाए, अगर फ़कीर है तो उसका मर गया तो उस पर तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोबारा ले, अगर गनी है जिस पर वाजिब है और कुर्बानी का जानवर उसका मर गया, दूसरा लेना होगा उसको। जी, अब भी गनी है तो इस सूरत में हाँ, अब भी वो गनी है तो उसको यानी कि इतनी उसके बाद रकम वगैरह है कि कुर्बानी के शराइत पाए जा रहे हैं, तो अब ये कि दूसरा जानवर उसको कुर्बानी करे या
इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले, कुर्बानी उस पर रहेगी वाजिब, मर गया तो। एक एडिशनल सवाल है कि अगर ऐसे वक्त कुर्बानी का जानवर मर गया कि अगर अब दूसरा जानवर लेने जाता है तो कुर्बानी करने का जो शरई वक्त है वो जाता रहा, 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब हो गई, अब कुर्बानी इसने करनी थी तीसरी ईद को, और अब ये जानवर लेने जाता है और जानवर लेकर जब इसे ज़बा करना है तो उस दौरान उसका कुर्बानी का जो वक्त था वो अब जाता रहा, तो अब उसके लिए कुर्बानी का क्या हुक्म होगा, जबकि उस पर कुर्बानी वाजिब थी और है भी गनी। हाँ, तो वो कुर्बानी का वो जानवर जो है ना वो जिंदा सदका कर दे। ठीक नहीं कह रहे मर गया, अल्लाह ना मर गया था, इस तरह नहीं वक्त चला गया। हाँ वो मर गया था, अच्छा मर गया था, यानी कुर्बानी का जानवर तीसरे दिन फौत हो गया, ठीक फौत हो गया, अब उसके ऊपर कुर्बानी का दूसरा जानवर लेकर कुर्बान करना वाजिब ही था क्योंकि उस पर कुर्बानी वाजिब थी, लेकिन अब ये जानवर लेता है और कुर्बानी करता है तो कुर्बानी का जो वक्त था वो जाता रहा, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? यानी इतना वक्त ही नहीं है कि जाके खरीदे और कुर्बानी करे जी, तो अब क्या करे? अब क्या करे? बकरी की कीमत सदका करेगा, एक बकरी की कीमत सदका करे। जज़ाकल्लाह। और वैसे अगर कोई वक्त तंग आ गए ना तो जैसे खरीदना मुमकिन हो तो साथ में गोश्त फरोश को ले जाए, और अगर वहीं मतलब जहाँ खरीदा वहीं जी जी अगर सूरज डूबने से पहले खाली छुरी फिर गई ना तो इसकी कुर्बानी हो गई। अब खाल वाल भले मगरिब के बाद उधेड़े, बहुत खूब, नमाज किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज पढ़ के मतलब उसको बाकी उसका काम करे, छुरी फिर जाए बस। कुर्बानी के जानवर की कम अज कम उम्र क्या होनी चाहिए? बकरे की 1 साल, भेड़ या दुम्बा 6 महीने का अगर हो गया है लेकिन दूर से देखने में साल भर का मालूम हो रहा है तो उसकी हो जाएगी, वरना 6 महीने की जो आम लोग कहते हैं कि 6 महीना जायज है, ऐसा नहीं है, साल भर का मालूम होना चाहिए हो, ऐसा हो तगड़ा। और गाय 2 साल, ऊंट 5 साल, ये कम से कम है, इसके ऊपर जितनी भी हो। उधर कई तलबाए कराम माशाल्लाह इस वक्त सुन रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, इस वक्त मैं देख रहा हूँ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में भी, अब ये तलबाए कराम या ये जो सुन रहे माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, यार ये बातें कैसे पता चले, और ये जानवर ने, ये कुर्बानी हो, ये वक्त ने, ये ने 1 टांग ने, 4 टांग ने, 2 सिंग ने, 4 सिंग, ये भेंगा तो ये फलां तो फलां, ये एब, फिर आपसे बातों का सुनते ये हराम है ना, ये जायज़ है, और ये जो भी जानवर का गोश्त, तो ये बातों का दिमाग में ख्याल आता होगा, मुंह में पानी आता होगा ना, यार ये कहाँ से, मेरे को भी पता होना चाहिए ना, तो अल्लाह का शुक्र है बंदी मुदाकरे में है, मगर ओवरऑल लगी कहाँ इधर तक कैसे आता, कहाँ से ये सब कुछ? अल्लाह वो दिन करे कि मुंह में पानी आया। क्यों? मेरे मुंह में पानी आता था ना तो मैं आपके साथ बैठा हुआ अल्लाह, मैं अपने सही बोलता हूँ, ये सब मेरे बच्चे, ये मतलब सारे पैदा भी नहीं हुए थे। यानी मैं जैसे कि मैं अपना किस्सा बताता हूँ ना कि हमारी मस्जिद के इमाम साहब थे, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, वफात पा चुके हैं, तो वो रोज़ाना गालिबन एक मसला बयान करते थे, फिर कोई मसला पेश आया हो, किसी ने उनसे पूछा होगा और मैं उसको सुनता था, पूछा होगा तो ये इन्होंने बाहर शरीयत मंगवाई, जिंदगी में पहली बार मैंने, पहले बाहर शरीयत के अलग अलग हिस्से मिलते थे, अब शायद नहीं मिलते, और बाइंडिंग के बगैर, बड़ा वो खूबसूरत टाइटल उसका, यूँ दारियाँ बनी हुई थी, वो नक्शा भी तकरीबन याद है मुझे, इस तरह की रंगीन दारियाँ बनी हुई थी, इन्होंने खोला तो उसमें मसला यूँ लिखा तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था, और मैं गरीब आदमी, यार आदमी भी नहीं था, लड़का था, खुदा जाने बालिग भी हुआ था या नहीं, तो हो सकता है बालिग भी नहीं हुआ होगा शायद, कमजोर सा लड़का गरीब घराने का, यार ये मेरे को कहाँ से मिले किताब, यूँ मेरे दिल में आया गया। तो ये मतलब यानी कि मेरे मुंह में पानी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर अल्लाह ने वो दिन दिखाए तो बाहर शहद के अलग अलग हिस्से मिलते थे, पहला हिस्सा 1 रुपये का मिलता था, दूसरा शायद 2 रुपये का था, तीसरा शायद 3 रुपये का था, सफ़ों के हिसाब से, तो 3 का, कोई 4 रुपये का, कोई उस तरह के ये मिलते थे। ये बाद में सब पता चला, तो ये फिर मैंने ख़रीदे और 28 रुपये की पूरी बाहर शरीयत
बगैर बाइंडिंग के, और बाइंडिंग वाली 32 रुपए की बहुत महंगी थी भाई, 2-2 रुपए, 2 जिल्दों में थी, तो वो 2-2 रुपए एक की बाइंडिंग, ये तो मैं कहाँ से लूँ? तो 28 रुपए की मुझे याद पड़ता है, टुकड़े टुकड़े करके या सिंगल सिंगल लेकर या किसी तरह भी, अरे पूरी बहार शरीयत मेरे पास आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको कहते हैं मुंह में पानी आना। जिस दिन इनके मुंह में पानी आए ना, तो ये जमाने के बहुत बड़े अल्लामा बन के उभरेंगे इंशाअल्लाह। न डर के यूं यूं बात कर रहे यार, जोश भी इतना नहीं है। ये इन्हें क्या कह रहे हैं, अब यूं करके क्या कहना चाहते हैं? मुंह में पानी आया, जब सच चेक कर लो, वहां पे झूठ ना हो जाए। जिसको मुंह में पानी आए ना, तो वो इस तरह मदनी मुज़ाकरे में खुदा की कसम आपको कहता हूं कि ये आपके लिए गनीमत है। अगर आप इसकी कदर करो, देखो कब मेरी आंख बंद हो जाए, मेरी उम्र आपके सामने, फिर आपको शायद ये मौका ना मिले। लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मसले बताने वाले तो पहले भी थे, अब भी हैं, आइंदा भी होंगे, ये थोड़ी खत्म होगा। लेकिन ये मदनी मुज़ाकरे की एक सूरत मौजूदा जो है, फिर वो नहीं रहेगी। ठीक है, मेरे बाद में चलाने वाले जो भी वो चलाएं, लेकिन जरा उनका अपना अंदाज होगा, तो इसलिए इसकी कदर कर लें, और जो मिलता है ले लें और संभाल के रख लें। जो दुरुस्त हो उसको बाकी रखें, जो दुरुस्त ना उसको, है ना, वो आप लोग सीखते हैं ना, खुद मा सफा दा मा कदर, अच्छा अच्छा वो ले लो, जो नहीं है ठीक उसको निकाल दो, दूर कर दो, फायदा उठा लो। जिनको मतलब कराची में तो ये आपको मौका है कि जो आ सकते हैं आ सकते हैं, बाकी जो दूर है बेचारे वो अरे मदनी चैनल भी देखने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, एक से एक आपको मिलेंगे। घर में सारे लोग सोए होंगे, वो एक तरकीब से लेके बैठा होगा मदनी चैनल या मोबाइल फोन, सफर में, ट्रेनों में, इस पे भी बाजों का सुन रहे होंगे। जज्बा, ये अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत अता की है मदनी चैनल, इसके जरिए इल्म दीन फैल रहा है अल्लाह की रहमत से। तो मुंह में पानी नहीं आता, मुंह में पानी लाएं, इसके फजाइल पर गौर करें, जज्बा पैदा हो जाए, तो इसकी बस स्टडी करें। उस वक्त मेरे उसमें मदनी मुज़ाकरे कहाँ थे, मैं जब थोड़ा यानी जिसको मतलब समझ आनी शुरू, मैं सवाल जवाब या मसले बयान करने वालों के भी सुने। मैं यानी यूं बोलूँ ना, मुझे बाज़ वक़्त भागते बनती थी, यानी एक मुबालगा करता, हाँ वाकई मैं नहीं सुन सकता था। मैंने बाहर शरीयत, मुझे कहने वालों ने हाफिज़ का बाहर शरीयत का, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये कि मसाइल पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी यानी कि मालूमात थी कि मैं यानी कि नहीं समझ आते थे मेरे को, यार ये क्या बोल रहे, लिखा हुआ तो यूं है। और मेरी इतनी जुर्रत नहीं, मेरा इतना कद भी नहीं था कि मैं किसी को बोलूँ और वो भगा देंगे डांट के मुझे, चल चल जुम्मा जो 8 दिन नहीं, हमने इतना इतना पढ़ा है, ये तो हिम्मत तो ना हो ना। तो यूं मतलब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जवानी में इतना मतलब यानी कि वो था, मैं बाहर शरीयत का दर्स देता था, दावत इस्लामी से पहले की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़ाहिर है वो सूरतें तब्दील हैं, और सारे मसाइल जो पढ़े थे वो अब ज़रूरी नहीं कि याद भी रहे हों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये अपने मुंह में पानी लाएं, खूब पानी लाएं, और बस वो मसाइल जो है ना, ये घोल घोल के आप पीना शुरू कर दें, बाहर शरीयत को निचोड़ के घोल के पी जाए। लेकिन इसमें उलमा की मोहताजी हर सूरत में रहेगी, क्योंकि वो राज्य मरजू ये हर दौर में होता रहता है। पहले वही राज्य था, अब हो सकता है मरजू हो जाए। ये एक इल्मी इस्तिलाह जो अवाम के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, जो समझते हैं वो समझ गए होंगे। इस्तिलाह भी नहीं है, मतलब अरबी अल्फाज ही यूँ समझ लो, या इसको इस्तिलाह कहते हैं, राज्य हो मरजू, अवाम को बताने की जरूरत नहीं जी, इस्तिलाह है, इस्तिलाह राज्य है मरजू। तो ये जो अहले इल्म है वो समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए उलमा की तो हर सूरत में मोहताजी रहेगी कि मैंने किताब पढ़ ली तो मैं समझूँ कि मैं वो अल्लामा देहर बन गया, नहीं, उलमा की मोहताजी है।
एक कौन सा राज्य कौन सा मरजू, ये अब भी उलमा ही इसमें रहनुमाई फरमाएंगे, वरना गलत फहमियां हो जाएंगी। कहीं कहीं होता है ऐसा, हर उसमें नहीं होता। आपने माशाल्लाह अभी बड़ी प्यारी तरबियत फरमाई। मसला 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 एक है फ़िक़्ह, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और ये तो ज़बरदस्त इल्म है। बाद वक़्त दिलचस्पी फ़िक़्ह की तरफ नहीं होती, यानी कि ये मसाइल की तरफ नहीं होती, दिलचस्पी तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ने की तरफ होती है। ज़्यादातर दिलचस्पी बाद वक़्त बाज़ की तफसीर, कुरान तफसीर पढ़ने की तरफ होती है, बाज़ वक़्त हदीस उसकी शुरूहात पढ़ने की तरफ दिलचस्पी होती है। तो एक मुतदिल अंदाज क्या होना चाहिए एक इल्म दीन हासिल कर, तालिब इल्म ही ज़रूर नहीं है, हर मुसलमान के लिए उसकी हस्बे ज़रूरत इल्म दीन सीखना उस पर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो उसके हस्बे हाल जिसको इल्म हासिल करना है, तो उसमें ये दिलचस्पियाँ तकसीम हैं, और बाज़ की ये आम इस्लामी भाइयों में भी है और तलबाए कराम में भी है। तो इसकी कुछ वज़ाहत फरमाएंगे? इसमें ऐसा है कि जो मतलब है ना कि अपनी ज़रूरत के मसाइल है वो तो सब पर फ़र्ज़ है, चाहे मुफस्सिर हो चाहे मुहद्दिस हो, है ना, या आलिम हो या गैर आलिम अवाम हो, ये हर एक को अपनी ज़रूरत के मसाइल जानना ये तो है ही फ़र्ज़। अब बाकी ज़रूरत से ज़्यादा जानना, अब उसके लिए बहरहाल ये कि अपना अपना ज़ौक़ अपना अपना शौक़, तो बिल्कुल इल्म तफसीर भी बेहतरीन इल्म, इल्म हदीस भी ज़ाहिर है कि इल्म हदीस इसी तरह दीगर जो भी फ़नून है वो अपने अपनी जिसको दिलचस्पी है वो उसमें ज़रूर हासिल करना चाहिए उसको। आपकी ये जो मुंह में पानी आने वाली जो बात, इसे हिकायत एक याद आई हुजूर, एक बुज़ुर्ग के बारे में मैं पढ़ रहा था किताब में, तो ये इनका बयान ये है कि मुझे किताब पढ़ने और मुताला करने का इतना मतलब मेरे अंदर वो था कि अगर कोई किताब मुझे मिलती तो बहुत मुश्किल मिलती, जैसा अभी आपने अपने बारे शरीयत का फरमाया। अब मैं मतलब कि किताब पढ़ते पढ़ते बार बार किताब का आखिरी सफ़ा देखता कि ये कितने सफ़े रह गए, और मुझे बेचैनी होती थी कि ये किताब मैंने अभी आज पूरी पढ़ ली तो फिर कल क्या पढ़ूंगा। तो मैं यूँ मतलब कि वो रिगा रिगा कर मैं ये पढ़ता था कि कहीं किताब ख़त्म ना हो जाए, और मैं किताब ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी दूसरी किताब कहाँ से लाऊंगा। तो वो ये चेप देख देख के पढ़ते थे कि ये तो ख़त्म होने वाली है, ओ अब क्या होगा। ऐसी दिलचस्पी थी उनको किताबें पढ़ने और लेने में माशाअल्लाह। मैं एक लाइब्रेरी का रुकन बनाता गया, किताबें दीनी लाइब्रेरी थी, तो वहाँ से आला हज़रत की किताबें मिल जाती थी। तो वो जो सवाल यही मसले और सवाल जवाब और तो ये पढ़ता था, और मेरे को भी यूँ होता था कि ये बदे पढ़ाई भी नहीं दाड़ा वगैरह कर रहे किससे होगा, तो रिगा रिगा वाला जो आप कह रहे ना, तो यूँ मेरे को होता था क्या। अब फतावा रज़विया शरीफ और ये बड़ी कुतुब तक तो मेरी अप्रोच थी नहीं, खैर वो भी बगैर किराए के बस वो पढ़ने को, क्योंकि जो किताबें किराए पर देते हैं ना पढ़ने के लिए तो जायज़ भी नहीं है किराया इसका। ये दीनी किताब फ्री मतलब है लाइब्रेरी, तो एक सुन्नियों की एक अंजुमन थी, उसमें मैं आना जाना था मेरा, तो मैं वहाँ से लेता था पढ़ता था शौक से, नहीं यूँ मजे ले लेकर। अल्लाह करे मुंह में पानी आए, कोई तो बोले यार मेरे मुंह में पानी आ गया, अब हट जाओ, मैं हूं और इल्म दीन है, खलास वो दिन रात मेहनत करनी है मुझे और इल्म दीन हासिल करना है इंशाअल्लाह। ना जामियतुल मदीना की छुट्टी मारनी है ना, ना मतलब यानी कि कोई और चक्करबाजी करनी है, बस पूरा अटेंडेंस भी पूरी और दिल लगाकर उसको पढ़ना है। तो आप वो जो वक्त जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, तो अब मोबाइल का नाम ही नहीं सुना था। अब वो मतलब ये कि ये अब मोबाइल है, तो अब ये कि ये मुंह में पानी मोबाइल देखकर आता है, मुंह में पानी ये मुंह में पानी लाने की आइटम बदल गई है। तो अब ये मोबाइल के होते हुए मुंह में पानी किधर से लावे किताब का उस पर, कि यार मोबाइल है ना, तो हमारा बहुत सारा वक्त तो दिलचस्पी ये दुनिया भर के नाज़रीन के लिए है कि मतलब कि ये कई चीज़ें हमारा मोबाइल ले गया। तो इसके लिए भी कुछ मदनी पुल दें कि किस तरह हम इससे बचकर अपने मकसद की तरफ रहें। ये बोलेंगे हमारे मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी है जी, ये नहीं बोलेंगे हम कितना इसको देखते हैं जी, लाइब्रेरी है, किताबें इसमें मौजूद है। तो
اب یہ کہ جس کو جذبہ ہوتا ہے نا, اب مفتی حسان کو میں نے 100 مرتبہ دیکھا ہے, آپ سب نے دیکھا ہوگا, یہ کتاب ساتھ رکھتے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے یہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں بھی لیک کے ساتھ, آج نہیں ہے شاید ساتھ موجود ہے, اس ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ اس کو مطلب یہ علم کا مطلب ہرس کہتے ہیں. اس کا تعلق کوئی کورسوں سے اور یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کورس حاصل کریں گے کورس سے, تو کورس میں سارا سیکھنے کو نہیں ملتا. یعنی یوں سمجھو کورس میں تھیوری ملتی ہے, باقی پریکٹیکل تو ہم نے دیگر کتب سے ہی کرنا ہے. سارے فرض علوم تھوڑی آپ سیکھ لیں گے اس میں. اپنے جو کورس یا درس نظامی آپ نے کر لیا تو آپ اپنے اگر سمجھتے تو آپ کی مرضی ہے کہ میں عالم بن گیا. یہ صحیح بہنیں چھوٹا سا کورس کرتی ہیں, سلام لکھنا نہیں آتا, ہوتی عالمہ ہے, بس زبان خود. سمجھے, کہ عالمہ کورس کر لیا میں نے, عالمہ ہوں, یا وہ میری بیٹی عالمہ بن گئی ہے. اور درس نظامی کرنے سے کوئی عالم تھوڑی بنتا ہے, عالم علم سے بنتا ہے. حافظہ بھی تو کہاں اتنا ہوتا ہے, نہ ہر دوسرے دن چھٹی مارتا ہے, اور مر کے دور حدیث جو کا جو تو کیا دکا اسٹارٹ. اب جیسے ہی سند ہاتھ میں آ گئی علامہ صاحب بن گئے, بلکہ کئی طلبہ علامہ کہلاتے ہوں گے. تو عالم علم سے بنتا. درس نظامی بالکل کرنا چاہیے, اس کے ذریعے بہت کچھ شدھ بدھ آتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ مزید اسٹڈی, پرائیویٹ اسٹڈی ضروری ہے, اس کے بغیر مشکل ہے گزارا. دینی کتابیں پڑھتے رہے, مکتبۃ المدینہ بھرا پڑا ہے. عربی کتب کا بھی مکتبۃ المدینہ ہے اپنا, اردو کا بھی ہے. اب عربی کتب پڑھ کر اس کو سمجھنا ظاہر ہے تو ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے. اردو کتابیں بھی ماشاءاللہ اپنے پاس ہیں, اس کو پڑھیں. اتنی ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی, کتابیں شاید پوری نہیں ہو سکیں گی. ہمارے پاس اتنی کتابیں ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. آج میں نے پہلی ذوالحجہ کا روزہ رکھا ہے اور میں نیت کرتی ہوں کہ 9 ذوالحجہ تک تمام روزے رکھوں گی. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرتی ہے. اصحابی نبی جنتی جنتی, حسن اور حسین کی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں, معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخر یہ نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخر یہ نبی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پاپا ہم دادا ابو کی قبر پہ ہیں, ہمیں پھول ڈال رہے ہیں, ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, مرحبا 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 ماشاءاللہ. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام, دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار مدینے کا دیدار عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
माशाल्लाह उस बच्ची ने बड़ी तवज्जो हासिल की, पहला रोज़ा रखा जुल्हज शरीफ के चांद का, और 9 रोज़े रखूंगी ये बताया। उम्र मैंने देखने की कोशिश की, लिखी भी नहीं थी छोटी सी। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। रोजीना नहीं, रोजीना साउथ अफ्रीका जी, वो इतनी दूर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अब ये कि हम बड़ों को भी तो इससे कुछ, रमज़ान के रोज़े नहीं रखते बड़े, ये बच्ची नफल रोज़े रखने पर आमादा है। सुभान अल्लाह, खुशनसीब माँ बाप है जिन्होंने, घर में ही माहौल होगा ना जो इनको ज़हन मिला होगा बच्ची को, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, नज़र बद से बचाए। तो अब बड़ों की देख लें क्या तरकीब बनती है। वैसे भी अपना एक पैकेज तो है ना, 3 पैकेज है ना, 9 रोज़े, 5 रोज़े और 3 रोज़े, इन 9 दिनों के अंदर अंदर। अब मैं तो कमज़ोर हूँ, मैंने 3 रोज़े की नियत करी है। आज इंशाअल्लाह जुमेरात है ना, कल नियति, कल रोज़ा रखूँगा जुमेरात, पीर शरीफ और 9 ज़ुल्हिज्जा। 9 ज़ुल्हिज्जा का तो पुराना मामूल हज़ारों लाखों का होगा, तो यूँ 3 रोज़े 9 दिन में अल्लाह करेगा रख लूँगा इंशाअल्लाह। 9 रोज़े नहीं रखूँगा। तो आप रखें, आप तो जवान हट्टे कट्टे माशाअल्लाह जिनसे बन पड़े, लेकिन आपके इल्म दीन के जो तालीम है ना उसमें रुकावट, अगर नफल रोज़ा बनता है तो फिर एक भी नहीं रखना। हाँ, वो अफजल भी है और वो उसकी अपनी जगह अहमियत है। और अगर ऐसा नहीं है, रोज़ा रखकर वो भी उसमें कोई कमज़ोरी फ़र्क नहीं आता, फिर दोनों हो तो सोने पे सुहागा है। वरना फर्स्ट इल्म दीन, नफल रोज़े, फ़र्ज रोज़े तो रखने भले कमज़ोरी हो जाए। अपनी अपनी कारकर्दगी भी दीजिएगा, 5, 9, 3 जो भी नियत है, तो अपनी मजलिस तो इंशाअल्लाह आज भी मुनासिब मौके पर वो कारकर्दगी बयान की जाएगी नियतों की। जी, अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया, इस वक्त हम मौजूद हैं मवेशी मंडी में और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है लोग मौजूद हैं। इनके दरमियान जाएंगे, कुछ बातचीत करेंगे, इनके तासुरात देंगे, क्या क्या इनके मसाइल हैं, किन किन मसाइल से दो चार हैं, और इंशाअल्लाह ताला उन मसाइल का हल जानने के लिए हम आपकी बारगाह में आए हैं। अब देखते हैं लोगों के पास जाकर उनके क्या क्या मसाइल हैं और आप किस अंदाज से उनके जवाबात इरशाद फरमाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सुन्नत इब्राहिमी है, लोगों का जोश व खरोश है, और ये इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ता क़यामत चलती जारी रहेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। आपको इस वक्त अमीर सुन्नत देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, हम तो मुरीद हैं, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी किस तरह की मोहब्बत है उनसे? मोहब्बत किस तरह तो बता नहीं सकते, इजहार नहीं कर सकते, खामोशी से टीवी में देखते रहते हैं और जो है वो अंदर ही अंदर जो है मोहब्बत करते रहते हैं। स्पेशली रमज़ान के दिनों में जो है बहुत फैज़याब होते हैं घर में, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे, हमारे फैमिलीज़ जितने भी हैं वो बड़े फैज़याब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल जिंदाबाद। हाँ देखते हैं, घर पे देखते हैं, अभी तो इधर नहीं है। हाँ, इधर कैसे देखें? जी जी। मौलाना इलियास कादरी साहब, अमीर सुन्नत, ये कि पुलिस के जो कवानीन हैं, जो मुल्क के कवानीन हैं, इस पर भी बड़ी आप तवज्जो दिलाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कानून पर अमल करना अच्छी बात है, उसमें जो है आदमी महफूज रहेगा। अमीर सुन्नत जिंदाबाद। हर सहाबी नबी जन्नती 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 जन्नती। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम रखा, पत्थर ने भी कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ आए हैं? मंडी। अच्छा जी, ये बताइए, ये कुर्बानी शुरू कैसे हुई? हमारे पैगंबर। सही, हमारे कौन से पैगंबर? नाम नहीं याद आ रहा मुझे। कोई नबी थे, उनको ख्वाब आया था। कौन से? नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जन्नत से क्या आया? वो दुम्बा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को शायद ख्वाब आया था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इसी वजह से कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी भी है। आदम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। पैगंबरों से कैसे, कौन से? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी तो जो है ना, नहीं दुम्बा आ गया था बीच में। अल्लाह ताला ने छुरी जो है ना सुस्त कर दी थी और दुम्बा आ गया था बीच में। माशाअल्लाह। सबसे पहला जानवर कौन सा दबा किया गया जहाँ से कुर्बानी की इब्तिदा हुई? दुम्बा। चक्की का दुम्बा, दुम्बे की दुम्बा कुर्बान हुआ था। दुम्बा। तो आप क्या लेंगे? इंशाअल्लाह
बकरा है बैल بیل لینے کا ہے. امیر السنت جنت سے جو ہے وہ دمبا آیا تھا. تو بقرہ عید میں بہت سارے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. بکرے کی بھی ہے, اونٹ کی بھی ہے, دیگر جانوروں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. کون سا جانور قربان کرنا افضل ہے کہ یہ جانور کیا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ ذرا اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی ارشاد فرمائیں. امیر السنت سے یہ بات عرض کرنا چاہیں گے, گیمی بہت لگی ہوئی ہے کہ اس عید میں بڑا مزہ آ رہا ہے, بقرہ عید میں لوگ کہہ رہے ہیں انجوائے ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے اس کا واقعہ کیا ہوا تھا, کہ کون سے نبی علیہ السلام تھے, کس طرح لے کے گئے. اگر یہ واقعہ ہمیں کچھ آپ کے انداز سے معلوم ہو جائے تو ہماری بھی رہنمائی ہو جائے. اور یہ واقعہ جو ہے معلومات نہیں ہے لوگوں کو. جانور تو لے رہے ہیں, 3 4 جانور لے رہے ہیں, خوب ایک لے کے چل رہے ہیں بچوں کو بھی, لیکن اس قصے کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو رہی ہے. جانور کی خوب دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس قصے کے بارے میں, اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے نا, وہ خواب کا بھی بیان ابھی آئے گا. کوہ صبیر جو ہے وہ مینا میں, تو کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی, اپنے بیٹے کو اللہ پاک کے حکم کی خبر دی, جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ترجمہ کنز الایمان, اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا, میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. فرما بدار بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ترجمہ کنز الایمان, اے میرے باپ کیجئے اس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے, خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی, ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے, اور میرے خون کی چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو. چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے, یعنی گلا فوراً کٹ جائے, کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے, پیشانی نیچے ہو اس طرح لٹائیے, یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے, اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے, اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے, اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے بیٹے تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا, اپنی چھری تیز کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا, ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی, لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا, یعنی گلا نہ کاٹا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی, ترجمہ کنز الایمان, اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے
बचा लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा शीप लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मुबारक आवाज सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए कि अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी और सारी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में जो मेंढा यानी दुम्बा ज़बह फरमाया था उसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का कहना यह है कि वो मेंढा यानी दुम्बा जन्नत से आया था और ये वही मेंढा था जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी में पेश किया था। उस मेंढे का गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे दरिंदों यानी फाड़ खाने वाले जानवरों और परिंदों ने खा लिया। सुभान अल्लाह। हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस मेंढे यानी दुम्बे के सींग अरसे दराज तक काबे शरीफ में रखे रहे, यहाँ तक कि जब काबे शरीफ में आग लगी तो वो सींग भी उस आग में शहीद हो गए, जल गए। बहरहाल ये कि ये वाकया भी मजीद भी है। ये अपने बेटा हो तो ऐसा एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, वो खूबसूरत बात तस्वीर रिसाला है, नहीं ये तस्वीरें जानवरों की नहीं है, मुख्तलिफ खूबसूरत है और शायद 4 रंग में है। तो ये बच्चों की कहानियों के तौर पर ये तैयार किया गया था। मकतबतुल मदीना से ज़रूर हासिल करें, मस्जिद भी आगे ये पढ़ें पढ़ाएं घर में सबको, तो कुर्बानी की याद ताज़ा होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ये मेंढा और दुम्बा ये 2 लफ्ज़ चल रहे हैं हमारे यहाँ, जैसे कि मार्केट में जो दूम वाला है उछड़ी वाला, हाँ उसको मेंढा कहा जाता है और जिसके पीछे चक्की है तो उसको दुम्बा कहा जाता है। तो अब ये जिस की बात हो रही है तो वो अब मेंढा और दुम्बा दोनों लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर कोई उस तरह की याद को मतलब रखे कि मैं तो वो दुम्बा ले के मेंढा ले कि मैं एक ऐसा जानवर ज़बह करना चाहता हूँ राय खुदा में। अब ये कि पीछे पोटली होती ना चर्बी की, ये दुम्बा कहलाता है। जी हाँ। वो खाली पूंछड़ी होती है वो मेंढा। ये हमारे उर्दू की तकसीम है जी। और उर्दू में मेंढा लिखा, मेंढा अरबी लफ्ज तो है नहीं, यूं देख लेते हैं हदीस पाक। जी जी अच्छा। तो अलबत्ता यह कि अब वो दुम्बा और मेंढा है गालिबन एक ही फैमिली, बल्कि जहां बकरी कहा गया ना बाहर शरीयत में लिखा हुआ है कि कुर्बानी की बकरी, कुर्बानी के लिए बकरी, तो बकरी में मेंढा, दुम्बा, भेड़, बकरा, ये सब बकरी शामिल। गाय कहा गया तो गाय में बैल भी आ गया, बछड़ा भी आ गया, गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई, भैंसा भी आ गया। तो अब यह कि अफजल जानवर कौन सा है, क्या वो भेड़ कैसा था, साइज क्या थी वगैरह, आप वो तो ज़ाहिर है कि उस तरह का तो कैसे लाया जाए। मुस्तहब
जो है ना बेहतर अफजल कौन सा जानवर, ये भी सवाल भी हुआ था। तो बहार शरीयत की तीसरी जिल्द पेज नंबर 344 344 मसला नंबर 18 मुस्तहब यह है कि कुर्बानी का जानवर खूब फरबे यानी ताज़ा तकड़ा और खूबसूरत और बड़ा हो, और बकरी की किस्म में से कुर्बानी करनी हो तो बेहतर सींग वाला मेंढा चित्त कुबरा हो, जिसके खुशिये कूट कर खस्सी कर दिया हो। कि हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मेंढे की कुर्बानी की। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, चित्त कुबरा ने जिसकी खाल पर मुख्तलिफ रंग हो, काला रंग होता है, कत्थई होता है ना, इस तरह रंग होते हैं, तो इसको चित्त कुबरा कहेंगे ना, मुख्तलिफ रंग हो खाल पर। ज़ेब्रा, ज़ेब्रे के तो पट्टे होते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत, आपसे ये पूछना था कि जो कुर्बानी के वाले दिन हम जानवर ज़िबा करते हैं, उस कुर्बानी के गोश्त से क्या मगरिब के बाद 11वीं शरीफ लग जाती है, तो क्या मौजूद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम की 11वीं शरीफ की नियाज उस गोश्त से दिला सकते हैं? और मेरे वालिद मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। पिछले साल तक तो मैं कुर्बानी किया करता था, पर इस साल असबाब नहीं बन पाए, तो अमीर सुन्नत बराह करम मेरे लिए आसानी की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक असबाब कर दे और कुर्बानी की सआदत मिले आपको। और कुर्बानी का जो गोश्त है, तो जिसने कुर्बानी की ये इसका मालिक है। सारा ही अगर रख ले तब भी इसके लिए जायज़ है, थोड़ा थोड़ा खाता रहे, लेकिन अफजल मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से करे। एक हिस्सा गरीबों का, एक रिश्तेदारों का, तो एक अपने इस्तेमाल का। अब अगर सारा बांट देता है तो भी सही है, सारा रख लेता है तो भी जायज़ है। तो अब इसमें चाहे 11वीं शरीफ करे, चाहे 12वीं शरीफ करे, नियाज करे, चाहे वलीमे में इस्तेमाल करे, शादी के खाने में इस्तेमाल करे, ये सब जायज़ है। बिल्कुल 11वीं शरीफ इससे करनी चाहिए कि ईद गुजार कर जो रात आएगी, धूमधाम से ख़ानदानों में दावतें होती हैं, तो ज़ाहिर नसीब 11वीं शरीफ की फातिहा दे दें, तबर्रुक दर तबर्रुक हो जाएगा। कुर्बानी का गोश्त है ही तबर्रुक, अल्लाह के नाम पर ये कुर्बान हुआ है, और अब इसमें मज़ीद गोश्त पाक के इसाले सवाब के लिए हो जाएगा, तो तबर्रुक मज़ीद उसकी बरकतें बढ़ जाएंगी। ये याद करके कर लीजिएगा। और ज़ाहिर नसीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये इसमें याद है, और ये सुन्नत इब्राहीमी कहलाती है कुर्बानी। तो इन 2 अंबिया किराम की भी खुसूसियत के साथ इन दिनों में नियाज होनी चाहिए। हम तो हाजी रजा, आपको याद होगा, मीना शरीफ में नियाज करते थे, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हम लोग नियाज करते थे। मक्का पाक पे भी की थी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नियत कर लीजिए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और गौस पाक के भी साथ 11वीं रात में सब एक साथ भी हो सकती है। आज जो अपने घर में जो खुद मुख्तार है, या जिनके घर में ऐसा माहौल है गौस पाक के चाहने वालों का, तो क्यों मना करेंगे? हाँ, अलग से बोलो ना 11 देंगे पकाओ, तो आपको हो सकता है डांट पड़ जाए। जो पका रहे उसी को नियाज कर रहे। मेहमान तो जमा होते ही हैं, कुछ ना कुछ, ना भी हो मेहमान तब भी अगर नियाज करते हैं और मिलजुल के खा लें, थोड़ा अड़ोस पड़ोस को थोड़ा दे दें, तो इंशाल्लाह मदीना मदीना मीठा मदीना। और पड़ोस में दें तो ये पता हो पड़ोस वालों को ये आपने किसकी नियाज की है, ताकि जहन बने। ये 1 पन 2 काजे
खाली दे देंगे तो फिर भी सही है, लेकिन बोल के नियाज है, बल्कि अड़ोस पड़ोस में और अल्लाह तौफीक बांटना चाहिए। नियाज हो और नियाज कहकर कि हमने आज 11वीं रात है, महाना 11वीं हमने की है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की आज नियाज की है। ये तबरुक आपको यूँ घर में सबको मोहल्ले में यूँ अगर गुंजाइश है, अल्लाह ने पैसे दिए तो यूँ करो, तो इस तरह नियाज का एक जहन बनेगा। खुदा की कसम बहुत बरकत वाला अमल है ये, आप करके देखें इसको, बहुत बरकत वाला अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, सवाब का काम है और 100% जायज़ है। ईसाले सवाब जायज़ है तो ये ईसाले सवाब ही तो है, और सबसे पहले बारगाह रिसालत में ही नजर किया जाएगा ईसाले सवाब जो करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये खाना खिलाना भी हो जाएगा, बिल्कुल खाना और खिलाना। यहाँ ये हदीस पाक भी पेश नजर हो सकती है कि खाना खिलाना जन्नत में वाजिब करने वाला काम है। जी हाँ, जन्नत वाजिब करने वाला काम है, मगफिरत वाजिब करने वाले कामों में से है। गालिबन मगफिरत का लफ्ज है, खाना खिलाना लिखा हुआ क्या है, मगफिरत, मगफिरत खाना खिलाना मगफिरत वाजिब करने वाले कामों में से काम है एक, तो मगफिरत वाजिब करने वाला, वाजिब करवाने वाला काम है, तो ये अच्छा काम है खाना खिलाना। लंगर मूसा भी होता था ना मक्के शरीफ में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लंगर, बिल्कुल। अब वो तो नमाजें और जी हाँ, इस सबब, लेकिन वो बकरीद की उसमें सूरत नहीं थी, वो अलग से। तो हम कई अंबिया किराम की और बुजुर्गों की नियाजें करते थे, रोज किसी न किसी के आमतौर पर नियाज होती थी। हज़रत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिलखुसूस होता था। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आज हम मौजूद हैं मवेशी मंडी में, और आज हम आपको कुछ यूनिक और एंटीक जानवर दिखाएंगे। वो जानवर जिनको देखकर आपको खुशी भी होगी और हैरत भी होगी। और सबसे पहले जो मैं जानवर दिखाने जा रहा हूँ वो जानवर तशरीफ़ फरमाए, और वो ये है। अब मुझे इसको देखकर हैरत तो हो रही है क्योंकि इसके सींग आप देख सकते हैं असली है जी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। अब ये मुझसे डर रहा है या मैं इससे डर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। यकीनन मैं भी डर रहा हूँ उससे, ये तो नहीं डरेगा क्योंकि इसके पास तो माशाल्लाह ख़तरनाक हथियार है। तो सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि इस तरह के जानवर, और इसका नाम भी कुछ जानदार और शानदार होना चाहिए, तो इसके जो सींग है, क्या इसके सींग काट देने चाहिए? क्योंकि इसके जो बड़े बड़े सींग हैं वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इंसान के लिए भी, बच्चों के लिए भी और कसाई के लिए भी। तो क्या फरमाते हैं आप, क्या इसके सींग काट दें या इसकी ये खूबसूरती बरकरार रखनी चाहिए, इसी में इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए? अब मैं जहाँ मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये ब्राउन कलर जो आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? आइए आपको दिखाते हैं। ये जो है, ये ब्राउन कलर की चीज़, ये है सुल्तान। सुल्तान साहब को थोड़ा सा नहीं प्यार करना चाह रहा था मैं, लेकिन सुल्तान साहब गुस्से में लग रहे हैं, और ये कदो कामत और जिसामत से वाकई सुल्तान लग रहे हैं, और इनके एटीट्यूड भी है वो सुल्तान वाले ही हैं। इस जानवर का जो वज़न है वो बताते हैं कि 60 मन वज़न है। 60 मन मतलब 2400 केजी वज़न है। अब ये 2400 केजी वज़न का जो जानवर है, इसका जो गोश्त, एक मिनट यार आपके बारे में ही बता रहा हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ। जो खुशकिस्मत ख़रीदार इसको ख़रीदेगा कुर्बानी के लिए, और इसमें तकरीबन 60 मन गोश्त निकलेगा, यानी 2400 केजी गोश्त निकलेगा। अगर वो पूरा इसको साल भर स्टोक करना चाहे तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा डीप फ्रीज़र भी कम पड़ जाएगा। तो शेख प्लीज़ ये बताइए कि इसके लिए कितना बड़ा डीप फ्रीज़र ले, 2-3 ले, प्लीज़ बताइए। पहले तो वो बड़े सींग वाला जानवर, ये सींग वाकई इसकी खूबसूरती इसमें है। सींग कट गए तो इसकी खूबसूरती नहीं रहेगी। ना काटने की, कुर्बानी के लिए जिसने लिया, खरीद लिया, अब नहीं काट सकता इसको। इससे पहले मालिक है, अगर मालिक ने काट दिया फिर उसके मसाइल खड़े होंगे, कितना कटा है, जड़ से निकाला है, क्या है, जख्म बाकी है नहीं, इसके मसाइल भी बयान हो चुके हैं। तो हम मतलब
इसके सींग बाकी रखे जाएं और सींग के बाद ये बिल्कुल गरीब हो जाएगी। गरीब बोलते हैं, ये गरीब बिल्कुल गरीब है। गरीब यूं करता है तो अमीर को हटा देता है धक्का मार के, डर जाता है ना अमीर। तो यूं मतलब ये कि माशाअल्लाह बड़ा हसीन जानवर है। अल्लाह पाक जो कुर्बानी करे इसकी लेकर उसकी कुर्बानी कबूल फरमाए। इसी तरह वो जो सुल्तान, पहले तो ये बता दूं सुल्तान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है। तो लफ्ज़ सुल्तान के लिए कहा गया ना, अब जो भी कहा गया वो मैं दोहराता नहीं, समझ गए होंगे। तो ये खैर इनकी नीयत नहीं थी, यकीनन तवज्जो नहीं थी। तो ये नाम चूँकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुल्तान है तो नाम बड़ा प्यारा है। और लफ्ज़ सुल्तान में अवाम हो सकता है समझते भी नहीं हो, अवाम ज़्यादातर शायद किंग में समझते होंगे, किंग बादशाह। तो सुल्तान के माना भी बादशाह। तो ये भी बड़ा माशाअल्लाह खूबसूरत, और इतना गोश्त उतना गोश्त तो अब कौन वजन करता है, जो कहने वाला कह रहा है समझे होगा। अब फ्रिज 2 ले 3 ले, इतना बड़ा जो मालदार आदमी लेगा इसको, गरीब तो लेगा नहीं। तो वो इतना गोश्त साल भर के लिए या सालों के लिए इसको स्टोर करेगी भी ज़रूरी नहीं है। तो मसला ये है कि अगर पूरा गोश्त कोई रखना चाहे कुर्बानी के जानवर का तो जायज़ है, पूरा तकसीम कर देना चाहे तो भी जायज़ है। अलबत्ता मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से इसके किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों को, एक रिश्तेदारों को और एक अपने इस्तेमाल के लिए रखे। अब ये 3 हिस्से तो करते मैंने कभी नोट नहीं किया, मेरे ख्याल में इसके अब गोश्त के तो 3 हिस्से होंगे, लेकिन क्या होगा, क्या चापों वाला अपने लिए हिस्सा रख लिया, कुर्बानी है ना, कुर्बानी दे रहे, नफ्स की कुर्बानी कौन देगा। चापे भेजा नाश्ते के लिए रख लिया, कलेजी नाश्ते के लिए निकाल ली। जो पसंदीदा चीज़ है वही तो राय खुदा में देनी है, ये है कसौटी। तो इसके भी मेरे ख्याल में तो कलेजी गुर्दा जो भी अपने जो पसंदीदा चीज़ उनके भी 3-3 हिस्से कर दिए जाएं, और एक गरीब को तो एक, अपने रिश्तेदार को तो एक अपने लिए भले रख ले। मुश्किल है ना, एक तो इतना सा भेजा निकलेगा, इसके 3 हिस्से कैसे हों, पाए तो अपनी फेवरेट है ये कैसे किसी को देते हैं। बहरहाल तो कुर्बानी है, तो इसमें अपने नफ्स को थोड़ा यूं दबोच के रखे आदमी और राय खुदा में खुशदिली के साथ लुटाए इंशाअल्लाह। जिनका ज्यादा जानवर कुर्बानी होती है उनके लिए ये मसले नहीं होते। अगर भेजा कलेजी वगैरह पसंद है तो इनको मिल जाता है, लेकिन एक ही बकरा करेगा ना, उधर ये कसौटी है उसकी कि अब ये क्या करता है। अल्लाह करीम बगैर इम्तिहान के हमको पास कर दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब इनके अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, ये हर बुलंद चीज को हमारे छोटे मिट्टू जो है ना, ये जुनेद, ये हर बुलंद चीज को मदीना कहते हैं। कहाँ है मदीना, तो कैमरे का ये बुलंद है ना, इसको ये मदीना। ये गुड साइन है कि यानी कि मदीना बुलंद है ना, पस्त तो हमारे मकान है दबे हुए। जो बुलंद मनारा मदीना, खंबा मदीना, मदीना कहाँ है, देखो कैमरा दिखा रहे, ये बुलंद है। ये फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा कहा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु
الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب ماشاء اللہ. اپنے کارکردگی وغیرہ جو پیش کرتے ہیں روزوں کی اور ذوالحجۃ الحرام 1444 میں نفل روزوں کی نیتیں 9 روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,668 20,668 اسلامی بہنوں کی تعداد 8,836 8,836 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 27,066 27,066 اسلامی بہنوں کی تعداد 9,831 9,831 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,506 48,506 اسلامی بہنوں کی تعداد 21,462 21,462 کل روزوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 96,240 96,240 اسلامی بہنوں کی تعداد 40,129 40,129 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,36,369 1,36,369 20 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1 وہ کون سا پانی ہے جسے سر پر ڈالنے اور چہرے پر ملنے والے سے ذلت و رسوائی دور ہوتی ہے؟ جواب آب زمزم شریف. سوال نمبر 2 کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی ہوتی تھی؟ جواب جی پچھلی امتوں میں بھی قربانی ہوتی تھی. سوال نمبر 3 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنے سال قربانی کی؟ جواب 10 سال. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت جہان خان اتاریہ خوشاب، بنت جمشید اتاریہ خانوال، عبد الرحیم ماتلی، بنت قریشی ڈیرہ غازی خان، فاروق احمد اتاری بھکر، ظہیر الدین اتاری مورو، ام قطمیر رضا کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت جمشید اتاریہ خانوال. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. آج کے جو مدنی مذاکرے میں سوالات ہیں اور جن کے جواب بذریعہ SMS ہمیں دینے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیے جائیں. سوال نمبر 1 بچوں کو خوش کرنے والے کو جنت میں جو گھر ملے گا اس کا نام بتائیے. سوال نمبر 2
اندھے جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس پہاڑ پر قربان کرنے کے لیے لے گئے اس کا نام بتائیے۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ اور یہ جو جوابات ہیں وہ ہمیں SMS کے ذریعے کل اذان عشاء تک بھیج دیے جائیں تو انشاءاللہ الکریم ان کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔